اسسٹنٹ کمشنر دفتر کے باہر رکھی لکڑی کی بینچ کے ایک کونے پر وہ لڑکی سمٹی بیٹھی تھی۔ اس نے گہرے رنگ کا بہت سادہ سوٹ پہنا ہوا تھا، جس کا دوپٹہ اس نے اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹ رکھا تھا۔ اس کی گود میں ایک فائل تھی جسے اس نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کی نظریں فرش پر جمی تھی، وہ یہاں کب سے بیٹھی تھی اسے خود اندازہ نہیں تھا۔ ہر بار جب دفتر کا دروازہ کھلتا اس کا دل حلق میں آ جاتا اور وہ جیسے بے اختیار اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر دیکھتی، پھر مایوس ہو کر نظریں جھکا لیتی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن تھا، لیکن اس وقت خوف، تھکن اور نہ جانے کتنی راتوں کی بے آرامی سے بھجا ہوا تھا۔ وہ یہاں کیوں آئی تھی؟ کس ہمت پر آئی تھی؟ یہ وہ خود بھی ٹھیک سے نہیں جانتی تھی۔ بس اتنا معلوم تھا کہ اس کے پاس اس دروازے پر دستک دینے کے سوا کوئی کی تیاری تو ایک بہت دور کا CSS راستہ نہیں بچا تھا۔ CSS خواب تھا، ایک بہانہ تھا جو اس نے خود کو یہاں آنے کے لیے دیا تھا۔ اصل مقصد صرف اتنا تھا کہ شاید کوئی مدد مل جائے۔ بی بی جی، نائب قاصد کی آواز پر وہ بری طرح چونکی۔ اس نے گھبرا کر اوپر دیکھا، صاحب بلا رہے ہیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں یکدم ٹھنڈے پڑ گئے، دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا، اسے لگا باہر کھڑا قاصد بھی اس کی آواز سن لے گا۔ وہ ہمت جمع کرتی ہوئی اٹھی، اس کے قدم لرز رہے تھے۔ اس نے اپنے دوپٹے کا کونا انگلیوں پر مروڑا اور آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھی۔ اندر آ جاؤں؟ اس کی آواز اتنی دھیمی نکلی کہ شاید اسے خود بھی سنائی نہ دی ہو۔ آ جائیں۔ اندر سے ایک بھاری سنجیدہ آواز آئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور قدم اندر رکھا۔ یہ ایک بہت بڑا متاثر کن دفتر تھا۔ ایک طرف دیوار پر قائد اعظم کی بڑی سی تصویر لگی تھی، سامنے ایک بہت بڑی چمکتی ہوئی میز تھی جس پر شیشے کے نیچے نہ جانے کتنے کاغذات دبے تھے۔ میز کے پیچھے ایک آرام دہ اونچی پشت والی کرسی پر اسسٹنٹ کمشنر حمزہ بیٹھا تھا۔ وہ 30-32 سال کا وجی نوجوان تھا۔ اس کی آنکھوں پر چشمہ تھا، بال سلیقے سے بنے ہوئے تھے اور اسے سفید شرٹ پر گہرے رنگ کی ٹائی لگا رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی افسر شاہی سنجیدگی طاری تھی جس نے اس کے اور سامنے والے کے درمیان ایک نہ نظر آنے والی دیوار کھڑی کر رکھی تھی۔ وہ فائلوں پر تیزی سے دستخط کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے لڑکی کے داخل ہونے پر سر اٹھا کر نہیں دیکھا، صرف ہاتھ کے اشارے سے اسے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ لڑکی سہمی ہوئی کرسی کے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کے ہاتھ اب بھی فائل پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ دفتر کی ٹھنڈک اس کے گھبرائے ہوئے وجود پر کوئی اثر نہیں کر رہی تھی۔ حمزہ اگلے 2 منٹ تک خاموشی سے فائلوں پر دستخط کرتا رہا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس طرح کی خاموشی سامنے والے سائل کے اعصاب پر کیا اثر ڈالتی ہے۔ یہ اس طاقت کا کھیل تھا جو یہ کرسی پر بیٹھنے والے کو سکھا دیتی تھی۔ اس کے لیے وہ صرف ایک اور کیس تھی جو کوئی نہ کوئی مسئلہ لے کر آئی تھی۔ جی، اس نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ بالآخر نظریں اٹھائے بغیر پوچھا۔ اس کی آواز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف ایک پیشہ ورانہ لاتعلقی تھی۔ وہ مجھے CSS کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے تھی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ حمزہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں اس کے گھبرائے ہوئے چہرے پر ٹھہریں۔ گھنی پلکیں، چاند سا روشن چہرہ اس کے ذہن نے لاشعوری طور پر نوٹ کیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی پیشہ ورانہ لاتعلقی واپس آ گئی۔ میں CSS کی معلومات کے لیے آپ کسی بھی اکیڈمی سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر سارا مواد موجود ہے۔ یہ میرا کام نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ہلکی سی بیزاری تھی۔ وہ روزانہ درجنوں ایسے لوگوں سے ملتا تھا جو سفارش یا غیر ضروری مدد کے لیے آتے تھے۔ وہ دراصل لڑکی کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ دیکھیے، اگر کوئی اور جائز مسئلہ ہے تو بتائیں، ورنہ میرا وقت ضائع نہ کریں، حمزہ نے سختی سے کہا۔ لڑکی کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی گود میں رکھی فائل کے کور پر گر گئے۔ اس نے ہمت کی اور کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل میز پر اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ میرے کاغذات ہیں۔ حمزہ نے بیزاری سے فائل اپنی طرف کھینچی۔ اس کے پاس وقت کم تھا، اسے اگلی میٹنگ کے لیے جانا تھا۔ اسے لاپرواہی سے فائل کا کور کھولا۔ اندر اس کی ڈگریاں، شناختی کارڈ کی کاپی اور کچھ اور کاغذات تھے۔ اس کی نظر سب سے اوپر لکھی درخواست پر پڑی اور پھر اس کے نیچے لکھے والد کے نام پر۔ اس لمحے کے لیے دفتر میں چھایا سناٹا مزید گہرا ہو گیا۔ حمزہ کے ہاتھ جو فائل بند کرنے والے تھے وہیں رک گئے۔ اس نے اس نام کو دوبارہ پڑھا، پروفیسر انور علی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ اس نے تیزی سے نظریں اٹھائیں اور اس لڑکی کو دیکھا جو اب خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ تم پروفیسر انور علی کی بیٹی ہو؟ حمزہ کی آواز میں اب وہ افسر شاہی نہیں تھی بلکہ گہری ناقابل یقین حیرت تھی۔ اس کا لہجہ یکدم بدل گیا تھا۔ لڑکی نے صرف سسکیوں کے درمیان اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ حمزہ کرسی سے ایسے اٹھا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ وہ میز کا چکر کاٹ کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔
اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ پروفیسر انور علی وہ شخص جو اس کا استاد تھا، اس کا محسن وہ شخص جس نے کالج کے دنوں میں نہ صرف اسے پڑھایا تھا بلکہ اس کی فیس بھی ادا کی تھی جب اس کے والد کے حالات خراب تھے، وہ فرشتہ صفت انسان جس نے اسے کہا تھا حمزہ تم ایک دن بڑے افسر بنو گے، بس انسانیت مت بھولنا۔ اور یہ کہ اس کی بیٹی تھی اس حال میں، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم یہاں باہر اتنی دیر سے کیوں بیٹھی ہو؟ اس کی آواز میں اب غصہ اور شرمندگی تھی، وہ کچھ بول نہ سکی۔ حمزہ نے جلدی سے انٹرکام کا بٹن دبایا، باہر سے کسی کو مت بھیجنا جب تک میں نہ کہوں۔ اس نے نائب قاصد کو حکم دیا، آپ کے والد کا انتقال کب ہوا؟ اس نے آواز کو قابو میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ 2 سال پہلے۔ حمزہ نے گہری سانس لی، اس نے فیصلہ کر لیا تھا، یہ فیصلہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کا نہیں بلکہ ایک شاگرد کا تھا جو اپنے استاد کا قرض چکانا چاہتا تھا۔ اب یہاں شہر میں کہاں رہ رہی ہیں؟ لڑکی نے نفی میں سر ہلا دیا، کہیں نہیں، کچھ دن پہلے ہاسٹل چھوڑنا پڑا۔ اس نے وہ سچ اگل دیا جو وہ چھپانا چاہتی تھی۔ حمزہ نے چند لمحے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب صرف ایک گہری تشویش تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں؟ لڑکی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ میرے گھر، حمزہ نے کہا اور واپس اپنی میز کی طرف بڑھا۔ میرا ایک بنگلہ ہے افسرز کالونی میں وہاں اکیلا رہتا ہوں جب تک آپ کے رہنے کا کوئی مستقل انتظام نہیں ہو جاتا یا جب تک آپ اپنی تیاری مکمل نہیں کر لیتی وہی رہیں گی۔ لڑکی کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ نہیں بھلا میں وہاں کیسے؟ یہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ دیکھیں، میں آپ کے والد میرے استاد تھے، آپ ان کی بیٹی ہیں، اس ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ آپ کی مدد کروں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے وہی الفاظ کہے جو اس کے دل میں تھے۔ اس نے اپنی فائلیں سمیٹی، اپنا کوٹ اٹھایا۔ اس کا رویہ اب بھی افسرانہ تھا، لیکن اس میں اب لا تعلقی نہیں بلکہ ایک حکم اور تحفظ تھا۔ چلیں، اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ اس اجنبی شہر میں اس طاقتور افسر کے سامنے بے بس تھی۔ اس نے آنسو پونچھے اور خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک نامعلوم مستقبل کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ یہ فیصلہ اس کے اور حمزہ کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ دفتر کا عملہ حیرت سے دیکھ رہا تھا جب اے سی صاحب معمول سے پہلے خود دفتر سے نکل رہے تھے اور ان کے پیچھے وہ لڑکی سر جھکائے چل رہی تھی جسے وہ گھٹنوں سے باہر بٹھائے ہوئے تھے۔ سرکاری گاڑی بنگلے کی طرف رواں دواں تھی۔ حمزہ ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر تھا اور وہ لڑکی پچھلی سیٹ پر کونے سے لگی باہر کی انجان سڑکوں کو دیکھ رہی تھی۔ گاڑی کے اندر ایک گہری بوجھل خاموشی تھی۔ سیاہ سرکاری گاڑی افسرز کالونی کے ایک بڑے گیٹ کے سامنے رکی۔ کالونی کے بنگلے ایک دوسرے سے فاصلے پر بنے تھے، ہر ایک کے گرد اونچی دیواریں اور وسیع لان تھے۔ گارڈ نے تیزی سے گیٹ کھولا اور گاڑی پورچ میں آ رکی۔ حمزہ خاموشی سے اگلی سیٹ سے اترا۔ آ جائیں، حمزہ نے پچھلا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے قدم باہر رکھا۔ اس کے پاؤں زمین سے لگتے ہی کام گئے۔ سامنے کا وسیع و عریض سفید عمارت کھڑی تھی۔ یہ کوئی گھر نہیں تھا، یہ ایک محل لگتا تھا، کم از کم ان کے لیے پورچ کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں اور بڑے سے لان میں فوارے سے گرتے پانی کی دھیمی آواز آ رہی تھی۔ اس نے اپنی پرانی فائل کو سینے سے مزید بھینچ لیا۔ وہ اس جگہ کے شایان شان بالکل نہیں تھی۔ اس کے کپڑوں پر صفر کی دھول تھی اور اس کا وجود تھکن سے چور تھا۔ ایک ادھیر عمر کا سفید وردی میں ملبوس ملازم جو شاید گھر کا نگران تھا تیزی سے باہر آیا۔ اس کا نام رحمت تھا۔ صاحب، آج آپ جلدی؟ رحمت کہتے کہتے رک گیا۔ اس کی نظریں حمزہ کے پیچھے کھڑی اس اجنبی پریشان حال لڑکی پر پڑی اور اس کی آنکھوں میں ایک واضح سوال ابھرا جسے اس نے فوراً ہی پیشہ ورانہ مہارت سے چھپا لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کے بنگلے پر، وہ بھی اس وقت، ایک جوان لڑکی کا ہونا معمول کی بات نہیں تھی۔ رحمت، یہ میری مہمان ہے۔ حمزہ کے لہجے میں ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ آئی جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ ان کے والد میرے استاد تھے، یہ کچھ دن یہیں ٹھہریں گی۔ رحمت نے سر جھکا کر اسے اور پھر لڑکی کو سلام کیا۔ جی بہتر صاحب، ان کے لیے اوپر والا گیسٹ روم کھلوا دو، حمزہ نے حکم دیا۔ اور کچھ کھانے پینے کا انتظام کرو۔ وہ خود لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی اپنی جگہ پر جمی کھڑی رہی۔ حمزہ نے مڑ کر دیکھا، وہ دروازے پر کھڑی تھی، اس کی گھنی پلکیں جھکی ہوئی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے حمزہ کو اس پر شدید ترس آیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کس کرب سے گزر رہی ہوگی۔ ایک اجنبی مرد کے گھر پر اس طرح آنا۔ آ جاؤ اندر، اس نے ایک بار نرمی سے کہا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ یہاں باہر کیوں کھڑی ہو؟ لڑکی نے ڈرتے ڈرتے پہلا قدم اٹھایا اور بنگلے کے ٹھنڈے ماربل فرش پر پاؤں رکھا۔ اندر کا منظر باہر سے بھی زیادہ مروب کن تھا۔ ہر طرف قیمتی فرنیچر، دیواروں پر پینٹنگز اور ایک ایسی خاموشی تھی جس میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ بی بی جی، آپ ادھر آ جائیں۔ رحمت نے جو اب تک صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکی نے ایک بار سوالیہ نظروں سے حمزہ کی طرف دیکھا۔ جاؤ، حمزہ نے کہا، آرام کرو، تمہیں اس کی ضرورت ہے، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ وہ خاموشی سے رحمت کے پیچھے چل پڑی۔
हमजा इसे सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखता रहा। एक कमज़ोर बेसहारा लग रहा था। ऑटो प्लेस आया जो इसके बड़े से घर में। बिल्कुल इसने अपना चश्मा उतारा और आंखें मली। इसने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया था अपने उस्ताद की बेटी को पनाह देकर, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये फैसला इसकी अपनी ज़िंदगी पर क्या असर डालेगा। वो थक कर सोफे पर गिर गया। इसने सोचा भी नहीं था कि एक आम सा दिन इस तरह के तूफान पर ख़त्म होगा। इसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। इसे घर पर इतला देनी चाहिए थी, कम से कम अपने दादा जान को, जो इसके ख़ानदान के सरबराह थे और जिनसे वो सबसे ज़्यादा डरता और मोहब्बत करता था। कल बता दूंगा, इसने सोचा और फ़ोन वापस जेब में रख लिया। ऊपर गेस्ट रूम में लड़की दरवाजे के साथ पुश लगाए खड़ी थी। ये कमरा इसके पूरे घर से बड़ा था। एक बड़ा सा बेड, ड्रेसिंग टेबल और साथ ही एक अटैच बाथरूम जिसमें हर आसाइश मौजूद थी। रहमत ने इसके सामने ट्रे रखी। बीबी जी, ये खाना है। साहब ने कहा था कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। इसे नज़र उठाकर खाने को देखा। इसे भूख का एहसास तक नहीं हो रहा था। इसका सारा वजूद अंदर से कांप रहा था। शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है। बीबी जी, साहब नाराज़ होंगे, आप थोड़ा सा खा लें। रहमत ने इसरार किया। इसने कांपते हाथों से एक निवाला लिया जो उसके हलक में अटक गया। रहमत खामोशी से बाहर निकल गया। जैसे दरवाज़ा बंद हुआ, इसके ज़ब्त का बंधन टूट गया। वो वहीं फर्श पर दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई और इसकी सिसकियाँ इस बड़े खामोश कमरे में गूंजने लगीं। वो अपने बाप को याद कर रही थी, अपनी किस्मत को रो रही थी और इस अजनबी छत के नीचे एक अजनबी अफसर के रहमो करम पर होने पर कांप रही थी। इसे क्या मालूम था कि असल तूफान तो भी आना बाकी था। शाम गहरी हो चुकी थी। वो रहमत को दोबारा कुछ कहने वाला था कि बाहर पोर्च में एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियों के रुकने की तेज़ आवाज़ आई। हमजा का दिल धक से रह गया। इस वक्त कौन हो सकता है? इससे पहले कि वो समझ पाता, बंगले का मरकजी दरवाज़ा किसी तूफान की तरह खुला और अंदर दाखिल होने वाली हस्ती को देखकर हमजा के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। सामने इसके दादा जान सरदार हाशिम खान खड़े थे। 70 साल से ज़्यादा उम्र के बावजूद इनकी कमर सीधी और आवाज़ में वही पुराना रोब और दबदबा था। इनके हाथ में एक पुरानी नक्शो-नगार वाली छड़ी थी। इनके पीछे इसकी दादी अम्मा बेगम हाशिम और इनके फूफो सुरैया दाखिल हुई। इनके चेहरों पर भी हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। दादा जान, आप इस वक्त खैरियत? हमजा ने अपनी आवाज़ को काबू में रखने की सरतोड़ कोशिश करते हुए कहा। वो तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ा। आपने इतला, हमें यहाँ आने के लिए तुमसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। हमजा, सरदार हाशिम की गरजदार आवाज़ पूरे लाउंज में गूंजी। हम लाहौर एक अजीज़ की अयादत को गए थे। वापसी पर सोचा अपने साहब बहादुर पोते से भी मिलते जाएं, जिसके पास पिछले 6 महीने से अपने ख़ानदान के लिए वक्त नहीं है। ये एक तंज था और हमजा इसका आदी था, लेकिन आज इस तंज में जहर था। नहीं दादाजान, मेरा मतलब वो नहीं था। आप बैठे, इसने जल्दी से कहा। रहमत, पानी लाओ। हम पानी पीने नहीं आए, फूफो सुरैया ने नाक चढ़ाते हुए कहा। हम तो ये देखने आए थे कि हमारा एसी साहब यहाँ क्या गुल खिला रहा है। हमजा को लगा जैसे किसी ने इस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। क्या मतलब फूफो? मतलब हम सब जानते हैं, दादी माँ ने सर्द लहजे में कहा। कचहरी से किसी ने फ़ोन किया था हमारे ड्राइवर को। इसने बताया कि साहब आज दफ्तर से एक जवान लड़की को साथ लेकर बंगले पर गए हैं। हमजा का खून खुश्क हो गया। खबर इतनी जल्दी फैल चुकी थी। दादा जान, वो आप गलत समझ। खामोश, सरदार हाशिम ने छड़ी फर्श पर मारते हुए कहा। कहाँ है वो लड़की? हमजा के पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं थे। इसका पूरा करियर, इसकी इज्जत, इसके ख़ानदान का नाम, सब कुछ दाव पर लग गया था। इसका अफसर शाही का खोल पिघल चुका था। मैं पूछ रहा हूँ हमजा, वो लड़की कहाँ है? दादा जान की आवाज़ बुलंद हुई और तभी सीढ़ियों पर आहट हुई। वो लड़की जो शायद शोर सुनकर घबरा कर बाहर निकली थी, सीढ़ियों के ऊपर नीम तारीकी में खड़ी थी। इसकी घनी पलकें आंसू से भीगी हुई थी और चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ा था। वो रही, फूफो सुरैया ने ऐसे चीख कर कहा जैसे इसने कोई मुजरिम पकड़ लिया। सभी नजरें इस पर जम गई। एक लम्हे के लिए लाउंज में मुकम्मल खामोशी छा गई। दादी माँ ने नागवारी से मुंह फेरा। सरदार हाशिम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। हमजा, दादा जान ने इस बार ख़तरनाक हद तक धीमी आवाज़ में पूछा, ये लड़की कौन है? हमजा ने एक नज़र अपने दादा के गज़बनाक चेहरे पर डाली और एक नज़र सीढ़ियों पर खड़ी इस लड़की पर, जो अब किसी भी लम्हे बेहोश होकर गिर सकती थी। सच, अगर इसे सच कहा कि मेरे उस्ताद की बेटी है, बेघर थी, मैंने नेकी की नीयत से पनाह दी है, तो क्या वो मानेंगे? हरगिज़ नहीं। इसकी फूफो इस बात का बतंगर बना देगी। वो इसे आवारा और बदचलन कहेंगी। वो इस लड़की को इसी वक्त घर से निकाल देंगे। एक बेसहारा यतीम लड़की रात के इस पहर कहाँ जाएगी? और इसका हमजा का असिस्टेंट कमिश्नर का क्या बनेगा? ये स्कैंडल इसके करियर को तबाह कर देगा। इसके पास सिर्फ चंद सेकंड थे। इसका दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था, एक अफसर का दिमाग जो नुकसान को कम से कम करना जानता है। इसने गहरी सांस ली। ये झूठ इसके हलक में अटक रहा था, लेकिन इसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। दादा जान, इसकी आवाज़ अजनबी और खुरदरी निकली।
ये मेरी बीवी है। एक और सन्नाटा, एक बार पहले से भी ज़्यादा गहरा। फुप्पो सुरैया का मुंह हैरत से खुला रह गया। दादी माँ ने चौंक कर हमजा को देखा। सरदार हाशिम की आंखें, जो गुस्से से लाल थीं, अब हैरत से सिकुड़ गईं। ऊपर खड़ी लड़की ने यह सुना और इसकी आंखें नाकाबिले यकीन हद तक फैल गईं। इसने दीवार का सहारा लिया, जैसे इसके पांव तले से ज़मीन निकल गई हो। बीवी? क्या? दादी अम्मा ने आगे बढ़ते हुए कहा। बीवी? हमजा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने हम सबसे छुपकर शादी कर ली। अब गुस्से की जगह एक नई अजियत ने ले ली थी। हमारी इज्जत खाक में मिला दी तुमने। फूफा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। किससे कर ली शादी? कौन है ये लड़की? इसका ख़ानदान क्या है? अरे हमें बताया तक नहीं। दादा जान, वो हालात ही कुछ ऐसे थे। हमजा अब अपनी ही झूठ के जाल में फंस चुका था। बस बहुत अचानक हो गया। मैं आपको बताने वाला था। अचानक? सरदार हाशिम अब भी इस पर यकीन नहीं कर रहे थे। इनकी काबी निगाहें हमजा के चेहरे का जायज़ा ले रही थी। कब हुआ ये सब? कहाँ हुआ? निकाहनामा कहाँ है? हमजा के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। तुम झूठ बोल रहे हो हमजा। दादा जान गिरजे, तुम हम सबको बेवकूफ़ समझ रहे हो। तुमने एक गैर लड़की को घर में रखा और जब पकड़े गए तो इसे अपनी बीवी कह दिया। तुमने ये सोचा कि हम तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कर लेंगे। दादा जान, खुदा के लिए आप मेरी बात। बस। सरदार हाशिम ने इसे टोक दिया। इसका चेहरा अब किसी भी जज्बे से आरी एक पत्थर की तरह सख्त था। वो चंद लम्हे टहलते रहे, जैसे किसी गहरी सोच में हो। फूफा और दादी माँ आपस में खुसर पुसर कर रही थीं और इस लड़की को हकारत भरी नज़रों से देख रही थीं, जो अभी सीढ़ियों पर बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। ठीक है। दादा जान अचानक रुके और हमजा की तरफ मुड़े। तुमने कहा ना कि ये तुम्हारी बीवी है। हमजा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन इसमें हिम्मत नहीं थी। ठीक है, तो हम मान लेते, दादा जान ने कहा, और इनके लहजे ने हमजा के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ा दी। लेकिन इन्होंने अपनी बात जारी रखी। ये शादी अब सबके सामने हमारे तरीके से होगी। जो तुमने छुप कर किया है, इससे अब असल में करना होगा। क्या मतलब? हमजा का खून मुंजमद हो गया। मतलब ये, दादा जान ने अपनी छड़ी का रुख इस लड़की की तरफ किया, कि अगर तुमने इसे अपनी बीवी माना है तो अब हम इसी वक्त तुम दोनों का निकाह पढ़वाएंगे। ये एक ऐसा बम था जिसकी तवक्को किसी को नहीं थी। दादा जान, आप होश में तो हैं? हमजा चीख पड़ा। आप मजाक कर रहे हैं? ऐसे कैसे? मैं बिल्कुल होश में हूँ हमजा हाशिम खान। दादा जान की आवाज़ में वो इख्तियार था जिससे हमजा हमेशा कामता था। तुमने ख़ानदान की इज्जत को दाव पर लगा दिया। या तो तुम सच बोलो कि लड़की कौन है, और फिर मैं इसे अभी इसी वक्त धक्के देकर इस घर से निकालूंगा और कल अखबार में तुम्हारी स्कैंडल की खबर फैलेगी। या फिर तुम अपने झूठ पर कायम रहो और इससे अभी निकाह करो, ताकि कल कोई हम पर उंगली ना उठा सके। ये एक नाकाबिले यकीन सूरत हाल थी। हमजा फंस चुका था। अगर वो सच बताता तो ये लड़की रात के इस पहर सड़क पर होती और इसका अपना करियर ख़त्म हो जाता, और अगर वो झूठ पर कायम रहता तो ये कोई मजाक नहीं है। दादा जान, आप एक लड़की की ज़िंदगी का फैसला ऐसे नहीं कर सकते, इससे पूछे बगैर। हमजा ने आखिरी कोशिश की। पूछना क्या है? सरदार हाशिम इसकी बात काटकर खुद सीढ़ियों की तरफ बढ़े। वो लड़की के सामने जाकर खड़े हो गए। वो इनकी बहुत हैबत से ही कांप रही थी। बेटी, इन्होंने हैरत अंगेज तौर पर नरम मगर फैसला को लहजे में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बामुश्किल अपनी आवाज़ तलाश की। महानूर। महानूर, दादा जान ने दोहराया। तुम्हारा कोई ख़ानदान है? कोई भाई, बाप, कोई सरपरस्त जो इस वक्त यहाँ आ सके? महानूर ने खामोशी से आंसुओं के दरमियान नफ़ी में सर हिलाया। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अल्फाज जैसे ही अदा हुए, सरदार हाशिम ने फैसला सुना दिया। ठीक है, तो आज से मैं तुम्हारा सरपरस्त हूँ, तुम्हारा दादा। इन्होंने ऐलान किया और बहैसियत तुम्हारे वली मैं तुम्हारा निकाह अपने पोते हमजा हाशिम खान से करवा रहा हूँ। नहीं, हमजा ने चीखना चाहा, लेकिन इसकी आवाज़ नहीं निकली। नहीं, प्लीज़। मानूर ने पहली बार इल्तिजा की। ऐसा मत करें। मैं खामोश। इस बार दादी अम्मा बोली। लड़की, तुम शुक्र करो कि तुम्हें इस घर में पनाह मिल रही है, इज्जत मिल रही है, वरना तुम्हारा जो हाल था इसके बाद सड़कों पर होती। सुरैया, दादा जान ने अपनी बेटी को हुक्म दिया, रहमत से कहो कि करीबी मस्जिद के मौलवी साहब को फ़ोन करे। इन्हें कहो सरदार हाशिम ने बुलाया है, फ़ौरन आए। और तुम, इन्होंने हमजा की तरफ मुड़कर कहा, जाकर तैयार हो जाओ। तुम असिस्टेंट कमिश्नर हो, इस खानदान के वारिस हो, और तुम वही करोगे जो मैं कह रहा हूँ, वरना आज तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। ये एक हतमी फैसला था, एक हुक्म था। हमजा बेबसी से इस लड़की को देख रहा था जिसे वो बचाना चाहता था, लेकिन अपने ही झूठ से इसने इसे एक ऐसी कैद में धकेल दिया था जिससे रिहाई शायद मुमकिन नहीं थी। वो जो CSS की तैयारी के लिए सिर्फ मालूमात लेने आई थी, अब से कुछ ही देर में असिस्टेंट कमिश्नर हमजा हाशिम खान की बीवी बनने वाली थी। इसे क्या पता था कि ये झूठ इतनी जल्दी सच बन जाएगा। बंगले के वसी लाउंज में क़यामत खेज खामोशी तारी थी। मौलवी साहब, जो सूरत हाल की संगीनी से बेखबर, सिर्फ सरदार हाशिम खान के हुक्म पर रात के इस पहर चले आए थे। सोफे पर तस्बीह पढ़ रहे थे। फूफो सुरैया गुस्से से टहल रही थी। हमजा हाशिम खान, असिस्टेंट कमिश्नर, अपने ही घर में एक मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ा था।
वो अपने दादा के फैसले के सामने बेबस था। इसने एक नज़र सीढ़ियों से उतरती महानूर पर डाली। रहमत ने इसे दादी माँ की एक पुरानी सुर्ख भारी चादर उड़ा दी थी, जिसमें इसका वजूद और भी सुकड़ा हुआ और बेबस लग रहा था। इसका चेहरा आंसुओं से तर था और आंखें खौफ से बेजान थी। महानूर, ये नाम इसके जहन से टकराया और अचानक वक्त जैसे कई बरस पीछे चला गया। हमजा 20-22 साल का एक संजीदा, दुबला पतला और ज़हीन नौजवान अपनी मोटरसाइकिल को गली के कोने पर खड़ा कर रहा था। वो अपने कॉलेज का टॉपर था। इसकी मंजिल सिविल सर्विस थी, इसलिए वो आज एक प्रोफेसर के पास रहनुमाई के लिए आया था, प्रोफेसर अनवर अली। इसे प्रोफेसर साहब के घर के एक छोटे से सब्ज रंग के गेट पर दस्तक दी। आ जाओ हमजा बेटे। अंदर से प्रोफेसर साहब की शफीक आवाज़ आई। हमजा अदब से अंदर दाखिल हुआ। प्रोफेसर अनवर अली अपने छोटे से किताबों से भरे स्टडी रूम में बैठे थे। कमरे में पुरानी किताबों और चाय की महक रची थी। बैठो, प्रोफेसर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? आईने पाकिस्तान ने फिर तंग कर कहा। हमजा ने झिझकते हुए बैग से नोट्स निकाले। सर, वो मारूजी सवालात, मुझे लगता है कि मैं कभी ये इम्तिहान पास नहीं कर पाऊंगा। इतनी ज़्यादा तफसीलातें? प्रोफेसर अनवर ने कहकर लगाया। हमजा, तुम ज़हीन हो, बहुत ज़हीन, लेकिन तुम हर चीज़ को किताब के नज़रिए से देखते हो। अफसर बनने के लिए सिर्फ इल्म नहीं, दिल भी चाहिए होता है। बाहर निकलो, लोगों को देखो, ज़िंदगी को समझो। सर, मेरे पास ज़िंदगी समझने का वक्त नहीं है। मुझे जल्द अज जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना है। हमजा ने संजीदगी से कहा, जो इसकी उम्र से कई ज़्यादा थी। तुम हो ही प्रोफेसर साहब के संजीदा स्टूडेंट। ये आवाज़ किसी लड़की की थी जो किसी कोने से आई और फिर कहके में डूब गई। हमजा ने चौंक कर देखा, आवाज़ खिड़की से आई थी। प्रोफेसर साहब ने एक थका हुआ मगर मोहब्बत भरा सांस लिया। मानूर, मैं पढ़ रहा हूँ, तंग मत करो। अब्बा जान, मैं तंग कहाँ कर रही हूँ, मैं तो आम तोड़ रही हूँ। हमजा ने बेख्तियार खिड़की से बाहर झांका। सामने एक छोटा सा सेहन था जिसकी 4 फुट ऊंची 4 दीवारी थी और इस मंडेर पर इंतहाई खतरनाक अंदाज में एक 17-18 साल की लड़की तवाज़ुन कायम रखने की कोशिश कर रही थी। इसने सब्ज रंग का ढीला ढाला सूट पहना था, दुपट्टा कमर से बंधा था और इसके हाथ में एक लंबी सी डंडी थी जिसे वो सामने दरख्त से लटकते आम को गिराने की कोशिश कर रही थी। वो प्रोफेसर अनवर अली की बेटी थी, महानूर। वो हमजा के बिल्कुल बरक्स थी। वो जिंदगी से भरपूर, शोर मचाती, लापरवाह और शरारती थी। हमजा जब भी यहाँ पढ़ने आता, इससे महानूर की हंसी, इसके गानों की आवाज़ या इसकी अपनी सहेलियों से झगड़ने की आवाज़ें आती रहती। अरे गिर जाऊंगी, वो चीखी और एक लम्हे के लिए इसका तवाज़ुन बिगड़ा। हमजा का दिल एक पल को रुका। वो बेख्तियार खड़ा हो गया। प्रोफेसर साहब, वो गिर जाएंगी। इससे पहले कि प्रोफेसर साहब कुछ कहते, महानूर ने अपना तवाज़ुन बहाल कर लिया, डंडी फेंकी और खुद ही छलांग लगाकर मुंडेर से सहन में कूद गई। गिर गई, गिर गई, इसने कहका लगाया और गंदे हाथों से मिट्टी में गिरा। आम उठा लिया। फिर इसकी नज़र खिड़की में खड़े हमजा पर पड़ी जो इसे घूर रहा था। महानूर ने एक लम्हे के लिए इसे देखा। हमजा को लगा वो शर्मिंदा होगी, लेकिन वो उल्टा मुस्कुरा दी। इसने आम दांतों से काटा और आंख मारते हुए बोली, क्या देख रहे हो अफसर साहब, आम खाओगे? हमजा बुरी तरह झींक गया। वो तेजी से खिड़की से हट गया। इसके गाल सुर्ख हो गए थे। माफ़ करना बेटे, प्रोफेसर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा। ये बहुत शरारती है, किसी की नहीं सुनती। इसकी माँ होती तो शायद कोई तहजीब सीख जाती। नहीं सर, कोई बात नहीं। हमजा ने ज़बरदस्ती अपनी तवज्जो वापस किताबों पर मरकूज़ करने की कोशिश की, लेकिन इसके कानों में अब भी इसकी बेबाक हंसी गूंज रही थी और इसके लब मुस्कुरा रहे थे। एक दिन हमजा अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस जा रहा था। वो जैसे गेट से निकला, इसे लगा कोई इसका पीछा कर रहा है। इसने मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। वो चंद कदम और चला। भूत! एक तेज चीख इसके कान के पास आई और कोई इसकी कमीज पकड़ कर लटक गया। हमजा बुरी तरह डर गया। इसके हाथ से किताबें छूटकर ज़मीन पर गिर गईं। इसने मुड़कर देखा तो महानूर, जो गेट की ओट में छुपी हुई थी, हंस हंस कर दोहरी हो रही थी। डर गए, डर गए। मुस्तकबिल के असिस्टेंट कमिश्नर साहब एक लड़की से डर गए। वो तालियां बजा रही थी। हमजा का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया। ये लड़की इसके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। ये क्या बदतमीजी है महानूर, इसने सख्त लहजे में कहा। मैं तुम्हारे वालिद का शागिर्द हूँ। तो क्या हुआ? वो कंधे उचकाकर बोली। इसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। अब्बा जान के शागिर्द हो, मेरे थोड़े हो। तुम इतने संजीदा क्यों रहते हो हर वक्त? लगता है जैसे अभी अभी किसी का जनाजा पढ़कर आए हो। मेरे पास फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। हमजा ने गुस्से से अपनी किताबें उठाई। अच्छा, नाराज मत हो संजीदा स्टूडेंट। वो उसके करीब आई। ये लो। इससे अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई। क्या है ये? हमजा ने शक से देखा। खोलो तो सही। हमजा ने हिचकिचाते हुए इसकी मुट्ठी खोली। इसमें कच्चे आम की चंद काशें थीं जिन पर नमक मिर्च लगा था। ये इस दिन वाला आम है, इसने मुस्कुराते हुए कहा। गुस्सा कम करने के लिए खा लो। हमजा ने इसे घूर कर देखा, लेकिन फिर ना जाने क्यों इसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसने वो काशें ले ली।
देखा हंस सकते हो तुम भी, महानूर ने फातिहाना अंदाज में कहा और अब्बा आ गए कहकर वापस घर के अंदर भाग गई। हमजा वहीं खड़ा रह गया। इससे ज़िंदगी में कभी ऐसी लड़की नहीं देखी थी। वो बेवकूफ़ थी, बेबाक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी सच्चाई और ज़िंदगी थी जो हमजा ने कभी किसी में नहीं देखी थी। वो CSS के इम्तिहान के लिए इस्लामाबाद रवाना हो रहा था। वो प्रोफेसर साहब से दुआ लेने आया था। सर आपकी बहुत मेहरबानी, अगर आप ना होते। नहीं हमजा, प्रोफेसर साहब ने इसे गले लगाया, ये तुम्हारी अपनी मेहनत है, मुझे तुम पर फ़ख्र है, जाओ और कामयाब होकर लौटना। वो गेट तक आए, लेकिन आज महानूर कहीं नज़र नहीं आ रही थी। ना इसकी हंसी ना शरारतें। महानूर कहाँ है सर? इसने बेख्तियार पूछ लिया। इससे बुखार है, कमरे में है। प्रोफेसर साहब के लहजे में तशवीश थी। हमजा, वो अचानक संजीदा हो गए। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सर आप हुक्म करें, मैं इस लड़की के बारे में बहुत फ़िक्रमंद रहता हूँ। प्रोफेसर साहब ने अपने घर की दूसरी मंजिल की खिड़की की तरफ देखा जहाँ शायद वो थी। ये दुनिया बहुत जालिम है हमजा, और ये बहुत मासूम है। इसके पास मेरी दुआओं के सिवा कुछ नहीं। अगर ज़िंदगी में कभी से तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़े, अगर वो कभी मुसीबत में हो तो इसका साथ देना। क्या तुम ये वादा करोगे? हमजा ने इस वक्त इसकी बात की गहराई को नहीं समझा था। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप हैं ना इसके लिए, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। प्रोफेसर साहब की आवाज़ हमजा के कानों में गूंजी। हमजा हाशिम खान वल्द, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज़ ने इस हॉल में वापस लापटका। इसे नज़रें उठाई। सामने वही लड़की खड़ी थी जो अब मंडेर पर हंस नहीं रही थी, जो अब इसे डरा नहीं रही थी। वो एक यतीम बेसहारा टूटी हुई लड़की थी। ये वही महानूर थी, इसके उस्ताद की बेटी। हमजा ने अपनी आंखें बंद कर ली। प्रोफेसर साहब का चेहरा इसकी आंखों में घूम गया। अगर वो कभी मुसीबत में हो तो इसका साथ देना। इसने आज इसका हाथ थामा था, एक झूठ बोलकर इसे अपने बंगले पर लाकर, और अब कबूल है। इसकी अपनी आवाज़ इसे अजनबी लगी। ये एक असिस्टेंट कमिश्नर की आवाज़ नहीं थी, ये एक शागिर्द की आवाज़ थी जो अपने उस्ताद का कर्ज चुका रहा था। निकाह की इस रात से एक हफ्ता पहले असिस्टेंट कमिश्नर हमजा हाशिम खान का ऑफिस रात के 8 बजे भी रोशन था। मेज़ पर फाइलों का अंबार लगा था और वो अपनी ऐनक के पीछे थकी हुई आंखों के साथ एक एक फाइल पर तेज़ी से दस्तखत कर रहा था। इसका शुमार ज़िले के सख्त तरीन, ईमानदार और असूल पसंद अफसरों में होता था। इसके लिए कानून से बालातर कुछ नहीं था। तभी इसके पर्सनल असिस्टेंट ने इंटरकॉम पर इतला दी, सर वो मुखबिर लाइन पर है। हमजा ने एक लम्हे के लिए कलम रोका। इसे अपने काम के एक हिस्से से शदीद नफरत थी, लेकिन वो जानता था कि शहर को साफ रखने के लिए ये गन भी साफ करना ज़रूरी था। इसे फ़ोन उठाया। बोलो। इसके लहजे में सर्द महरी थी। साहब जी, दूसरी तरफ से एक घुटी घुटी चौकस आवाज़ आई। पक्की खबर है? न्यूज़ गर्ल हॉस्टल जो इंडस्ट्री एरिया के पास है साहब, इसके अंदर धंधा होता है। आज रात कोई बड़ी पार्टी है, बाहर से भी लड़कियां आई हुई हैं। हमजा ने आंखें बंद कर ली। एक और हॉस्टल, एक और बदनामी का गढ़। ये हॉस्टल्स गरीब, बेसहारा तालबात और नौकरी पेशा लड़कियों के नाम पर रजिस्टर होते थे, लेकिन इनकी आड़ में क्या होता था ये सब जानते थे। कितनी पक्की खबर है? साहब जी 100% पक्की। हमजा ने फ़ोन बंद कर दिया। इसने अपनी ठोड़ी को मुट्ठी से रगड़ा। ये काम नाजुक होते हैं, इसमें इज्जतें दाव पर लगी होती हैं, लेकिन अगर खबर सच थी तो ये एक बड़ा नेटवर्क हो सकता था। इससे चंद लम्हे सोचने को लगाए और फिर फैसला कर लिया। जावेद, इसने अपने पीए को आवाज़ दी, SHO थाना सदर को कहो नफरी तैयार करे, और सबसे अहम 4 लेडी कांस्टेबल्स लाजमी साथ हों। 10 मिनट में मेरे दफ्तर के बाहर मिलें। सर अभी? हाँ अभी। हमजा ने अपना कोट उठाया। इसकी थकन गायब हो चुकी थी। इसकी जगह पेशा वराना सख्ती ने ले ली थी। न्यू गर्ल्स हॉस्टल की इमारत एक निस्बतन तारीख गली में थी। बाहर से ये किसी भी आम हॉस्टल की तरह लग रही थी जिसका रंग और रोगन उखड़ा हुआ था। हमजा अपनी सरकारी गाड़ी में पिछली सीट पर बैठा था, जबकि पुलिस मोबाइल खामोशी से गली के दोनों सिरों को बंद कर चुकी थी। सर SHO ने कहा है, हुक्म दें। लेडी अफसरान आगे रहेंगी। हमजा ने हतमी हदायत दी। कोई तमाशा नहीं बनाना है, जो सबूत मिले और जो मुलव्विस हों सिर्फ इन्हें उठाना है। बाकी लड़कियों को हरासा नहीं करना, सब कुछ कानून के दायरे में रह कर करना है। जी सर। हमजा गाड़ी से उतरा। इसने अपने इर्द गिर्द पुलिस के हसार में हॉस्टल के जंग आलूद गेट को देखा। एक गहरी सांस ली और गेट को जोर से धकेला। अंदर का मंजर वो नहीं था जिसकी वो तवक्को कर रहा था। ये कोई शोर शराबे वाली पार्टी नहीं थी। हॉस्टल का लाउंज बज़ाहिर पुरसकून था, लेकिन हवा में एक अजीब सी घुटन और सस्ते परफ्यूम की बू रची थी। एक अधेड़ उम्र की मेकअप में लथड़ी औरत जो शायद वार्डन थी, इन्हें देख कर बौखला गई। कौन है आप लोग? ये लड़कियों का हॉस्टल है, आप अंदर कैसे? असिस्टेंट कमिश्नर। हमजा ने अपना कार्ड दिखाया। और ये पुलिस है, हमें हॉस्टल की तलाशी का वारंट हासिल है। तलाशी? कैसी तलाशी? औरत ने चीखना चाहा, लेकिन हमजा के सर्द लहजे और पुलिस को देखकर इसकी आवाज़ दब गई। इंस्पेक्टर। हमजा ने लेडी SHO को इशारा किया, कार्रवाई शुरू करें।
लेडी पुलिस अफसरान तेजी से ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ी, जबकि मर्द कांस्टेबल्स ने दाखिली रास्तों और लाउंज को महफूज कर लिया। हमजा वही लाउंज के बीच में खड़ा हो गया, इसकी नजरों पर कोने का जायजा ले रही थी। चंद ही मिनटों में ऊपर से चीखों, पुकार, रोने और मिन्नत समाजत की आवाज़ें आने लगी। ये वो आवाज़ें थी जिनका हमजा आदी हो चुका था। साहब छोड़ दे मेरी इज्जत, मैं यहाँ सिर्फ अपनी दोस्त से मिलने आई थी। ये वार्डन झूठ बोल रही है, इसने हमें फंसाया है। लेडी कांस्टेबल एक एक करके लड़कियों को नीचे ला रही थी। कुछ ने जल्दी में दुपट्टे ओढ़े थे, कुछ के बाल बिखरे हुए थे और कुछ के चेहरों पर ढिठाई थी। ये वो मंजर था जो हमजा की रूह को हमेशा मगदर कर देता था। ये मजबूरियाँ थी या लालच या दोनों। इन सबको मोबाइल में बिठाओ, SHO ने हुक्म दिया। हमजा की नज़रें लड़कियों का जायज़ा ले रही थी। वो सब खौफजदा थी, लेकिन इनके खौफ में भी एक मानूसियत थी, जैसे इन्हें मालूम था कि पकड़े जाने पर क्या करना है। फिर इसकी नज़र एक आखिरी लड़की पर पड़ी। वो बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। इसे एक सीनियर लेडी कांस्टेबल बाजों से पकड़े नरमी से ला रही थी। इसने मुकम्मल हिजाब किया हुआ था, एक बड़ा सा काला अबाया और चेहरे पर नकाब था। इसका पूरा वजूद इस माहौल से, इस इमारत से और इसके साथ चलती बाकी लड़कियों से यकसर मुख्तलिफ था। वो खामोश थी, वो रो नहीं रही थी, चीख नहीं रही थी। हमजा के कदम जम गए। वो क्यों गिरफ्तार हुई, शायद वो भी, लेकिन कुछ था जो मैल नहीं खा रहा था। जैसे वो इसके करीब से गुजरने लगी, इसने एक लम्हे के लिए नजरें उठाई। हमजा ने इन आंखों को देखा। वो आंसुओं से भीगी हुई थी, इनमें नमी थी, लेकिन ये खौफ के आंसू नहीं थे, ये जिल्लत के आंसू थे। और इन आंसुओं के पीछे एक अजीब सी चमक थी। ये गुस्सा नहीं था, ये इल्तिजा नहीं थी, ये कुछ और था। ये एक ऐसी गहरी नाकाबिले फहम चमक थी जिससे कोई सितारा टूट कर बुझ रहा हो। इसमें एक ऐसी वहशत ज़दा मासूमियत थी जो इस गंदी जगह पर नहीं होनी चाहिए थी। हमजा उलझ सा गया। इसका अफसर वाला जहन जो हर चीज़ को स्याह और सफ़ेद में देखता था, एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया। ये लड़की ये जहाँ क्या कर रही थी? वो एक सेकंड के लिए रुका। इस लड़की की आंखें भी एक पल के लिए हमजा पर टेक गईं। वो सिर्फ इस वर्दी वाले अफसर को देख रही थी जो इनकी किस्मत का फैसला करने वाला था। हमजा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला और इससे पूछना चाहता था, तुम कौन हो? वो लेडी कांस्टेबल को रोक कर इससे अलग पूछगछ करना चाहता था, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। लेडी कांस्टेबल इसे लेकर आगे बढ़ गई। हमजा वहीं खड़ा रहा। सर, SHO ने इसे चौकन्ना किया, इमारत सील कर दें। हाँ, हमजा ने अपनी आवाज़ को बामुश्किल संभाला। सील कर दो और वार्डन को भी गिरफ्तार करो। वो रात भर सो नहीं सका। वो फाइलें साइन करता रहा, कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करवाता रहा, लेकिन इसके जहन के पर्दे पर दो आंखें, वो निकाब के पीछे छुपी नमी और वो अजीब सी चमक बार बार आ रही थी। इसे लग रहा था जैसे वो इसे जानता है। इसने खुद को झिड़का, तुम एक अफसर हो हमजा, तुम जज नहीं हो, तुम्हारा काम सिर्फ कानून पर अमल दरामद करवाना है। वो जो भी थी गलत वक्त पर गलत जगह पर थी। इसने इस वाक़े को अपने जहन के किसी कोने में दबा दिया। ये इसके काम का हिस्सा था, एक और फाइल, एक और केस। इसे क्या मालूम था कि सिर्फ 7 दिन बाद ज़िंदगी इसे एक बिल्कुल मुख्तलिफ और इससे भी ज़्यादा नामुमकिन सूरत हाल में ला खड़ा करेगी। मौलवी साहब निकाह की कार्रवाई करके जा चुके थे। सरदार हाशिम खान ने अपने तई खानदान की इज्जत बचाकर सुकून का सांस लिया था और अपने कमरे में चले गए। दादी अम्मा और फूफो सुरैया ने मानूर को एक ऐसी नज़र से देखा था जिसमें हकारत और गुस्सा था, और फिर वो भी अपने कमरों की तरफ बढ़ गई थी। बंगले का वसी लाउंज अब मुकम्मल तौर पर खामोश था। रहमत ने झिझकते हुए पूछा, साहब? हमजा जो अब तक एक मुजस्मे की तरह साकित खड़ा था, इस आवाज़ पर चौंका। इसने एक नज़र मानूर पर डाली। वो इसी सुर्ख भारी चादर में लिपटी फर्श पर नजरें गाड़े खड़ी थी, जैसे इसका वजूद ही ना हो। वो एक मुजरिम थी, एक मुल्ज़िमी थी या एक दुल्हन, कोई नहीं जानता था। इसे मेरे कमरे में छोड़ आओ, हमजा ने इस सर्द लहजे में कहा। मानूर ने मेकान के अंदाज में कदम उठाए। इसके पाँव शल हो चुके थे। वो रहमत के पीछे चलती हुई असिस्टेंट कमिश्नर के आलीशान ठंडे बेडरूम में दाखिल हुई थी। ये कमरा इसके ख्वाबों से भी बड़ा था, लेकिन इस वक्त ये इसे किसी कब्र से ज़्यादा नहीं लग रहा था। रहमत इसे अंदर छोड़कर खामोशी से दरवाज़ा बंद करके चला गया। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी रही। बाहर से सिर्फ झिंगिरों की आवाज़ आ रही थी। मानूर वहीं दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी। इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस कमरे में एक कदम भी आगे बढ़ा सके। फिर दरवाज़ा खुला और हमजा अंदर दाखिल हुआ। इसने कोट उतारकर कुर्सी पर फेंका, अपनी टाई की गिरा ढीली की और फिर वो इसकी तरफ मुड़ा। इसकी आंखों में वो नरमी नहीं थी जो इसने आज दोपहर दफ्तर में दिखाई थी, ना ही वो घबराहट थी जो अपने दादा के सामने थी। अब इसकी आंखों में एक जला देने वाला गुस्सा था। वो टहलता हुआ इसके करीब आया। मानूर ने खौफ से आंखें बंद कर लीं। तो खुश हो तुम? हमजा की आवाज़ जहर में बुझी हुई थी। मानूर ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके आंसू गालों पर बह रहे थे। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, वो इस पर धारा। खुश हो तुम? यही चाहती थी तुम? एक अमीर शौहर, एक सरकारी बंगला, असिस्टेंट कमिश्नर की बीवी बनने का बहुत शौक था। नहीं, मैं खुदा के लिए, इसकी आवाज़ बामुश्किल निकली, खुदा के लिए। हमजा ने तंजिया कहकर लगाया। खुदा का नाम मत लो, तुम जैसी लड़कियां सब जानती है। तुम जानती थी कि मैं अपने उस्ताद की बेटी को इनकार नहीं करूँगा। तुमने मेरी हमदर्दी का फ़ायदा उठाया, तुमने मुझे इस्तेमाल किया। मैंने कुछ नहीं किया। वो ससक पड़ी। कुछ नहीं किया? हमजा इस पर झुका। अगर तुम आज मेरे दफ्तर ना आती, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में दाखिल ना होती तो कुछ भी ना होता।
तुम मेरी ज़िंदगी में आई और सब कुछ तबाह हो गया। इसने मुट्ठी भींच कर दीवार पर मारी। मेरे घर वाले वो मुझ पर शक कर रहे हैं, इन्हें लगता है कि मेरा किरदार ख़राब है। अरे वो मुझे जानते नहीं है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक दाग नहीं लगने दिया अपने ऊपर, और आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी दादा की नज़रों में एक मुजरिम बन गया हूँ। महानूर ने नफ़ी में सर हिलाया। इसके बाल इसके भीगे चेहरे पर बिखर गए। मेरा यकीन करें, मैं तो सिर्फ खामोश। हमजा ने गरज कर कहा, एक लफ्ज़ भी मत बोलना। तुमने मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ मुझसे बुलवाया। ये मेरी बीवी है और इस झूठ की कीमत क्या मिली मुझे? ये इसने इसकी तरफ इशारा किया। इन्होंने मुझे तुमसे शादी करने पर मजबूर कर दिया सिर्फ इसलिए कि वो मुझ पर शक कर रहे थे। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो इस पर सारा गुस्सा निकाल रहा था जो वो अपने दादा पर, अपनी फूफो पर या अपनी किस्मत पर नहीं निकाल सकता था। वो सबसे आसान हदफ थी। वो एक कमज़ोर बेसहारा लड़की थी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था। मैंने तुम्हारे बाप अपने उस्ताद की वजह से तुम पर तरस खाया था। हमजा ने थके हुए शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा। मैंने सोचा मैं इनकी अमानत को संभाल लूंगा, लेकिन तुम तो एक अजाब बनकर नाजिल हुई हो। वो चंद लम्हे इसे घूरता रहा जो अब बेदम होकर वहीं दीवार के साथ फर्श पर बैठ गई थी। सुन लो, हमजा ने आखिरी बार कहा, ये शादी एक झूठ थी और ये एक झूठ ही रहेगी। तुम इस कमरे में रहोगी लेकिन मेरे लिए तुम्हारी कोई हैसियत नहीं होगी। वो रुका नहीं, इसने सोफे से एक तकिया और चादर उठाई और कमरे से बाहर निकल गया। मैं स्टडी रूम में सो रहा हूँ। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ एक धमाके की तरह आई। महानूर ने अपने घुटने सीने से लगाए और इस ठंडे अजनबी कमरे में अपनी नई ज़िंदगी की पहली रात पर वो फूट फूट कर रो पड़ी। अगली सुबह एक क़यामत थी। नाश्ते की मेज़ पर सब मौजूद थे। सरदार हाशिम खान खामोश पुरवकार बैठे थे। दादी अम्मा और फूफो सुरैया की नज़रें मुसलसल महानूर का जायज़ा ले रही थीं, जो रात के मैले कपड़ों में सूजी हुई आंखों के साथ एक मुजरिम की तरह कुर्सी पर सुकरी बैठी थी। हमजा वर्दी में मलबूस तैयार था। वो ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो मुकम्मल तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में था। जो हुआ सो हुआ। सरदार हाशिम ने नाश्ता ख़त्म करते हुए रोबदार आवाज़ में कहा, अब ये लड़की इस घर की इज़्ज़त है, हमारी बहू है। इन्होंने हमजा को देखा और हमजा, तुमने हमें बहुत मायूस किया है, लेकिन अब इस रिश्ते को निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस लड़की को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। फुप्पो ने मुँह बनाया। अब्बा जान, आप भी किसको समझा रहे हैं? इसने तो हमारा सर झुका दिया था। खामोश सुरैया, दादा जान ने डांटा। वो उठ खड़े हुए। आधे घंटे बाद पूरा ख़ानदान जिस तूफ़ान की तरह आया था इस तरह वापस जा चुका था। जैसे दादा की गाड़ी गेट से निकली, हमजा जो इन्हें अलविदा करने बाहर गया था, इसका चेहरा बर्फ़ की तरह ठंडा और स्पाट था। वो लाउंज में खड़ी महानूर के पास से गुजरा, लेकिन जैसे वो वहाँ थी नहीं। रहमत, इसने आवाज़ दी। जी साहब, बीबी को ऊपर गेस्ट रूम में शिफ्ट कर दो, ये इसका पहला हुक्म था। इसने महानूर को अपने कमरे से भी निकाल दिया था। और मुझे आज रात देर हो जाएगी, मीटिंग है, वो कहकर चला गया। इस दिन के बाद बंगले पर एक अजीब उदास खामोशी छा गई। हमजा घर पर बहुत कम टिकता। वो सुबह सवेरे चला जाता और रात गए वापस आता, जब महानूर अपने कमरे में बंद हो चुकी होती। वो जानबूझकर इससे बचता था। वो इस घर को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करता था। कभी कभार अगर दिन में इसका सामना हो भी जाता तो वो इससे बात नहीं करता था। वो रहमत को आवाज़ देता या फ़ोन पर बात करता, लेकिन महानूर से वो एक लफ्ज़ भी नहीं कहता। वो इसके वजूद से इंकारी हो चुका था और महानूर वो इस बड़े खाली बंगले में एक कैदी बनकर रह गई थी। वो अपनी किस्मत पर शाकी रहती। वो घंटों खिड़की के पास बैठी बाहर सड़क को देखती रहती जहाँ लोग आज़ाद घूम रहे थे। वो रोती रहती। वो सोचती कि मेरा गुनाह क्या था? क्या यतीम होना गुनाह था या मदद मांगना? वो इस हमजा को याद करती जो उसके बाप का संजीदा स्टूडेंट था, जो इसकी शरारतों पर झींप जाता था। और फिर इस हमजा को देखती जो असिस्टेंट कमिश्नर था, जो इसका शौहर था और जिसके दिल में इसके लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं था। वो इस आलीशान बंगले में असिस्टेंट कमिश्नर की कागजी बीवी बनकर उदास फिरती रहती और अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रहती। एक शाम जब रहमत इसके लिए खाना की ट्रे लेकर गया तो वो परेशान हो गया। महानूर बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। इसका चेहरा जर्द था और इसकी सांसें तेज चल रही थी। बीबी जी, रहमत ने घबरा कर आवाज़ दी। महानूर ने बामुश्किल आंखें खोली। इसका जिस्म आग की तरह तप रहा था। बीबी जी, आप ठीक तो है ना? आपने सुबह से कुछ नहीं खाया? पानी इसके होंठों ने बामुश्किल आवाज़ निकाली। रहमत ने भागकर पानी का गिलास भरा और इसका सर उठाकर इसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन गिलास इसके कांपते हाथों से छूट गया। वो शदीद बुखार में थी। रहमत, जो एक पुराना और वफादार मुलाजिम था, सूरत-ए-हाल की संगीनी को समझ गया। वो जानता था कि साहब ने इस लड़की से बात करने से मना किया था, लेकिन यह मामला बेइंसानी जान का था। रात 11 बजे जब हमजा अपनी जीप से उतरा, वो आज मामूल से भी ज़्यादा थका हुआ और चिड़चिड़ा था। एक इंक्वायरी में इसका दिन बहुत बुरा गुजरा। वो सीधा अपने स्टडी रूम में घुस गया, कोट उतारकर कुर्सी पर फेंका और सर पकड़कर बैठ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? वो गरजदार आवाज़ में बोला। रहमत ने झिझकते हुए दरवाज़ा खोला। साहब, क्या मुसीबत है? रहमत, हमजा ने सर उठाए बगैर कहा। था ना, मुझे डिस्टर्ब मत करना। साहब, वो बीबी जी की। हमजा का मूड और बिगड़ गया। अब क्या हुआ इससे? नहीं साहब, रहमत की आवाज़ में एक बार एक गैर मामूली संजीदगी थी। बीबी जी बहुत बीमार है, इनका जिस्म आग की तरह तप रहा है।
वो सुबह से बेहोश पड़ी हैं। हमजा ने एक लम्हे के लिए साकित हो गया। बीमार, बेहोश, ये एक नई परेशानी थी। अगर इसे कुछ हो गया तो? वो इसके उस्ताद की बेटी थी और अब कानूनी तौर पर इसकी बीवी थी। वो इसकी जिम्मेदारी थी, और एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे वो निभाना नहीं चाहता था लेकिन छोड़ भी नहीं सकता था। डॉक्टर को फ़ोन किया है? इसने पूछा। साहब, पहले आप खुद देख लें, मुझे इनकी हालत ठीक नहीं लग रही। हमजा गुस्से से उठ खड़ा हुआ। वो तेज़ कदमों से स्टडी रूम से निकला और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। इसका दिल भारी हो रहा था। वो इस लड़की का सामना नहीं करना चाहता था, ख़ास तौर पर जब वो कमज़ोर हो। इसने दरवाज़ा खोला। कमरा नीम तारीख था, सिर्फ टेबल लैंप की हल्की सी रोशनी फैली थी। महानूर बिस्तर पर एक छोटी सी गठरी की तरह सुकड़ी पड़ी थी। इसने शायद वही पुरानी चादर ओढ़ रखी थी। इसकी हल्की हल्की कराहने की आवाज़ आ रही थी। हमजा चंद लम्हे दरवाजे पर खड़ा रहा, फिर वो हिचकिचाते हुए आगे बढ़ा। महानूर, इसने अपनी आवाज़ को सख्त रखने की कोशिश की, लेकिन इसमें ना चाहते हुए भी थोड़ी तशवीश आ गई थी। कोई जवाब नहीं आया। वो बिस्तर के करीब पहुंचा और झुका। इसने इसके माथे पर हाथ रखा। इसका हाथ जलने लगा। इसे तो बहुत तेज़ बुखार है। तभी महानूर ने बुखार की हालत में आंखें खोल दी। वो खौफजदा थी, आंसुओं से भरी हुई, और बुखार की शिद्दत से इनमें एक अजीब सी शीशे जैसी चमक थी। वो इसे देख रही थी लेकिन पहचान नहीं रही थी। इनमें वही वहशत, वही बेबसी और वही जिल्लत थी। हमजा वहीं जम गया, इसके दिमाग पर जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। इसने ये आंखें पहले देखी थी, और फिर एक झमाके से इसकी आंखों के सामने चंद दिन पुराना मंजर घूम गया। न्यू गर्ल्स हॉस्टल की तारीक गली, सस्ते परफ्यूम की बू, गिरफ्तार होने वाली लड़कियां, और वो एक लड़की जो स्याह नकाब में थी। वो लड़की जिसने एक लम्हे के लिए नजरें उठाई थी। हमजा का दिमाग चकरा गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो बेख्तियार पीछे हटा। वो लड़की जिस पर इसे तरस आया था वो महानूर थी। इसका मतलब है कि वो इस घिनौने अड्डे पर, इसका जहन जो पिछले एक हफ्ते से इस जबरी शादी पर गुस्से में था, अब एक नई नफरत से भर गया। तुम? इसकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती महसूस हुई। महानूर जो बुखार में बड़बड़ा रही थी, इसकी आवाज़ की सख्ती से चौंकी। इसने आंखें पूरी तरह खोलने की कोशिश की। हमजा इस पर झुका। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो हॉस्टल इस रात वो तुम थी? महानूर की बुखारज़दा आंखें खौफ से फैल गईं। ये वो सवाल था जिसकी वो तवक्को नहीं कर रही थी। क्या? झूठ मत बोलना, हमजा इस बार धारा। इस रात रेड में जो लड़कियां पकड़ी गई थी, इनमें से एक तुम थी? बोलो। महानूर का पूरा वजूद कांपने लगा। इसका बुखार जैसे एक लम्हे में उतर गया। इसका सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक राज इस शख्स के सामने आ गया था जिसे वो सबसे ज़्यादा छुपाना चाहती थी। वो सच और झूठ के दरमियान अटक गई। बोलो महानूर। हमजा ने इसका बाजू पकड़ के इसे झंझोड़ा। क्या तुम इस रात इस हॉस्टल में मौजूद थी? बुखार, कमज़ोरी और अब ये खौफनाक इंकशाफ। महानूर की हिम्मत जवाब दे गई। इसने हार मान ली। इसने रोना शुरू कर दिया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। इसकी हाँ इसकी सिसकियों में डूब गई, लेकिन हमजा को अपना जवाब मिल गया। हाँ, इसने एक कांपती हुई आवाज़ में इतराफ़ किया। वो मैं ही थी। हमजा ने इसका बाजू ऐसे झटका जैसे इसने किसी गंदी चीज़ को छू लिया हो। वो 2 कदम पीछे हटा। इसके चेहरे पर नाकाबिले यकीन नफ़रत और हकारत थी। तो ये हो तुम? इसने थूक निगलते हुए कहा। ये मेरे उस्ताद की बेटी, ये है इनकी तरबियत। इसने महानूर को कोई और सवाल करने या सफाई देने का मौका नहीं दिया। वो मुड़ा और तूफान की तरह कमरे से बाहर निकल गया। महानूर ने इसे पुकारने की कोशिश की, मेरी बात सुने। मैं वहाँ, लेकिन वो जा चुका था। वो इसी बुखार ज़दा ठंडे कमरे में अपने सबसे बड़े राज के खुल जाने पर अकेली रोती रह गई। 5 साल एक तवील अरसा होता है। हमजा हाशिम खान अब इस ज़िले का असिस्टेंट कमिश्नर नहीं था। इस रात महानूर का इतराफ़ सुनने के बाद वो गुस्से और हकारत से भर गया था। वो बंगला वापस आया और अहमद को पैसों का एक बंडल दिया कि वो इस लड़की को जहाँ जाने भेज दे, और ख़ुद एक तवील छुट्टी पर चला गया। इसका तबादला हो चुका था। इन 5 सालों में वो कई शहरों में भटकता रहा। इसके दादा जो इसकी हरकत से वाकिफ़ हो चुके थे, इससे सख्त नाराज़ से इसका करियर मुतासिर हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा इसका ज़मीर मुतासिर हुआ था। वो नकाब वाली आंखें और वो फिर बुखार में तपती वही आंखें इसका पीछा करती रहीं। इसने खुद को कभी माफ़ नहीं किया। आज 5 साल बाद वो एक पुरानी इंक्वायरी की फ़ाइल के सिलसिले में अपने ऑफिस आया था। इसे बताया गया था कि यहाँ नई तैनाती हुई एसी साबिका ज़िला की है, एक नौजवान और इंतहाई सख्त अफसर की। वो पुराने जाने पहचाने दफ्तर के दरवाजे पर रुका। इसका दिल अजीब तरह से धड़क रहा था। इसका पुराना दफ्तर था, हर चीज़ वैसी थी। एक्सक्यूज़ मी सर। इसने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर आ जाएं। अंदर से एक निस्वानी पुरवकार और बेहद मानूस आवाज़ आई। हमजा के कदम वहीं जम गए। ये आवाज़ नहीं, ये इसका वहम था। इसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। दफ्तर की वही बड़ी स्याह कुर्सी, असिस्टेंट कमिश्नर की कुर्सी मेज़ पर पड़ी। नेम प्लेट पर लिखा था महानूर अनवर। कुर्सी पर फाइलों में घिरी वो औरत बैठी थी जिसे वो 5 साल पहले बुखार में तड़पता हकारत से ठुकरा कर छोड़ आया था। हमजा को लगा जैसे किसी ने इसके पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली हो। ये महानूर थी, लेकिन ये वो महानूर नहीं थी
वो सुकरी सहमी रोती हुई लड़की नहीं थी, ये एक पुरएतमाद ज़हीन और बावकार खातून थी। इसे सादा सा खूबसूरत लिबास पहना था, बाल सफाई से बंधे थे और इसकी आंखों में अब वो वहशत या नमी नहीं थी, इनमें एक अफसर की चमक और जहानत थी। वो महानूर को बैठा देखकर चौंक गया। महानूर ने फाइल से नजरें उठाई, एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए। इसकी आंखों में 5 साल पुराना दर्द लहरा गया, लेकिन इसने फौरन खुद पर काबू पा लिया। मिस्टर हमजा हाशिम खान, इसने पेशा वराना अंदाज में कहा। इसकी आवाज़ बिल्कुल सपाट थी, जैसे वो किसी अजनबी शख्स से बात कर रही हो। बराए मेहरबानी तशरीफ़ रखें, मुझे बताया गया था कि आप फाइल के सिलसिले में आ रहे हैं। हमजा, जो अब भी सदमे की हालत में था, एकदम बोला, जी वो फाइल। इसके हलक में अल्फाज अटक रहे थे। ये रही। महानूर ने एक फ़ाइल इसकी तरफ बढ़ाई। मैंने कल रात इसे स्टडी किया, आपके दस्तखत की ज़रूरत है। पुरानी इंक्वायरी है, आपको इसे बंद कर देना चाहिए था। इसका लहजा इतना प्रोफेशनल था कि हमजा को एक लम्हे के लिए शर्मिंदगी महसूस हुई। वो जो कभी इसका अफसर था, आज इसके सामने एक साइल बनकर बैठा था। 10 मिनट तक वो काम की बात करती रही। वो इसे कानून की पेचीदगियाँ समझा रही थी और हमजा सिर्फ इसका चेहरा देख रहा था। वो सोच रहा था कि ये सब कैसे हुआ। मिस्टर खान, महानूर ने टोका, क्या आप सुन रहे हैं? हाँ हाँ। हमजा ने जल्दी से फाइल पर दस्तखत किए। काम ख़त्म हो चुका था। कमरे में एक भारी तकलीफ खामोशी छा गई। हमजा उठने लगा, लेकिन इसके अंदर का बोझ इसे उठने नहीं दे रहा था। वो झिझकते हुए रुका। महानूर, इससे नज़रें उठाकर इससे देखा। वही सर्द पेशा वराना नजरें। तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? इसने आखिरकार पूछ लिया। महानूर चंद लम्हे देखती रही, फिर इसके लबों पर एक तल्ख मुस्कुराहट उभरी। यहाँ तक पहुँचना इतना मुश्किल नहीं था हमजा। इसने पहली बार इसका नाम लिया। जिस रात तुम मुझे छोड़कर गए थे, मैं भी इस बंगले से निकल गई थी, तुम्हारे दिए हुए पैसों से नहीं, अपने वालिद की दी हुई तरबियत और एतमाद लेकर। हमजा ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। तुम तो मेरा एतबार नहीं किया ना, वो कहती रही। इसकी आवाज़ में अब 5 साल पुराना दर्द छलक रहा था। लेकिन मुझे खुद पर यकीन था। मुझे अपने बाप की तरबियत दिखानी थी। मुझे साबित करना था कि प्रोफेसर अनवर की बेटी हालात से घबराकर गलत रास्ते पर नहीं चल सकती। इसलिए मैंने मेहनत की। मैंने वही इम्तिहान पास किया जिसकी तैयारी तुम मेरे बाबा से करने आए थे, और आज मैं इसी कुर्सी पर हूँ जिस पर बैठकर तुमने कभी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। महानूर, मैं हमजा के पास अल्फाज नहीं थे। तुम जानना चाहते थे ना इस रात हॉस्टल में क्या हुआ था? महानूर ने खुद ही कहा। सुनो, इस दिन हॉस्टल में मेरा पहला दिन था। मैं अपने रिश्तेदारों के तानों से भागकर इस शहर में नौकरी ढूंढने आई थी। मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। इस औरत ने मुझे सस्ते हॉस्टल का बताया। मुझे खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम था वहाँ क्या होता है। इसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इसने इन्हें गिरने नहीं दिया। मैं इस साथ वहाँ पहुँची थी कि तुम्हारा रेट पड़ गया। मैं इस माहौल से इतनी खौफजदा थी कि मैंने नकाब कर लिया और तुमने मुझे इन सब लड़कियों जैसा समझ लिया। और फिर जब मैं तुम्हारे घर में थी बीमार, तुमने मेरी सच्चाई नहीं सुनी। तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। तुमने अपना फैसला सुनाया और चले गए। हमजा कुर्सी पर बैठा नहीं था। वो शर्मिंदगी और एहसास जुर्म से झुका जा रहा था। महानूर, इसने कांपती हुई आवाज़ में कहा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं अंधा हो गया था अपने ओहदे के गरूर में, अपने ख़ानदान की झूठी शान में। मैंने एक बेगुनाह पर एतबार नहीं किया। वो अपनी कुर्सी से उठा और असिस्टेंट कमिश्नर की मेज़ के सामने खड़ा हो गया। मुझे माफ़ कर दो महानूर, मैं इन 5 सालों में एक दिन भी सुकून से नहीं सोया। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। महानूर की आंखें जो इतनी देर से जब्त किए हुए थी, आंसू बह निकले। वो गुस्सा, वो दर्द जो उसने 5 साल पहले अपने सीने में छुपाए रखा था, वो इस पर एतराफ़ पर पिघल गया। हमजा ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं तुम्हें लेने आया हूँ महानूर, इसने टूटे हुए लहजे में कहा, अगर तुम मुझे माफ़ कर सको। इस शाम जब हमजा की गाड़ी हवेली के बड़े गेट पर रुकी तो ये मंजर 5 साल पहले वाले मंजर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमजा ने खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोला। महानूर, वही वकार पुरएतमाद महानूर गाड़ी से उतरी। सामने बरामदे में सरदार हाशिम खान अब बूढ़े हो चुके थे, लाठी के सहारे खड़े थे। इनकी आंखों में आंसू थे। मेरी बहादुर बच्ची, वो आगे बढ़े। मेरा पोता बेवकूफ़ था, लेकिन मुझे मालूम था कि मेरी बेटी गलत नहीं हो सकती। मुझे माफ़ कर देना बेटी, हम तुम्हारे मुजरिम हैं। दादी अम्मा और फूफो सुरैया शर्मिंदगी से नज़रें झुकाए इसके इस्तकबाल के लिए खड़ी थीं। साहिबा माँ एसी। हमजा ने महानूर का हाथ थामा। घर में खुशामदीद। महानूर ने एक नज़र हवेली पर, एक नज़र हमजा पर और एक नज़र आसमान पर डाली जहाँ इसके वालिद का सितारा मुस्कुरा रहा था। वो फिर मुस्कुराते हुए मुतमईन अंदाज में अपने कदम आगे बढ़ा दिए।